morning students, welcome to the new lecture of TRE2. In last lecture we have studied about rails, different types of rail section, requirement of rail sections, okay, and we have seen three different and main types of rails, bull-headed, double-headed and flat-footed. Today we will continue our topic on rail. Today we are going to study about the rail joints and defects in rails, wears of rails and welding joints in rails. Okay? So let's continue. So our topic for today is different types of rail joint. As you all know that joints is considered to be the most important as well as the most weakest part of anything. Okay, any kind of a joint. If you consider your body joints, they all are the weakest point. Okay, so in railway track also joints are considered to be the most weakest part of the railway section. Okay, so it is extremely important to give attention to the joints. Okay, so it's very important to make railway joints strong. There are so many methods of connecting uh, railway lines. Okay, different rails together. There are so many methods. So we'll see what kind of joints usually preferred in Indian Railway. Okay, so let's see. Here, rail joints are necessary to hold together the adjoining ends of rails in the correct position, both in horizontal and vertical plane. As you all know, yesterday we have discussed about the length of rails. Okay, as you all know, the length of one particular rail is 13 meter. Okay, so if you want to lay down a track of 2 kilometer, you need so many sections of rails. Okay, so how will you connect that rails? Through joints. Okay, end-to-end connections. Okay, so while connecting the rail joints, it is extremely important to maintain horizontal as well as vertical level of rails. Okay, it is extremely important to maintain horizontal and vertical levels of rail. For example, see here, there are perfect joints. Okay, we have maintained. See, this is one rail, this is another rail. Okay, these are connected. Okay, these are connected together. So see here, vertical as well as horizontal plane are maintained. Okay, it is considered to be the most weakest part. Okay, so you have to give attention to railway joints. See, this connection is called as a normal connection. This is called as fish plate, which is connecting the two railway lines. Okay, let's continue. See here, the most usual problems which occur on railway joints. See, weakest link in track, of course, it is considered to be the most weakest part. It breaks the continuity. It breaks the continuity. Blow of wheel, loosening of fish plate, ballast fastening, etc. Uh, when the train passes through a railway joint, there is a chances of loosening of fish plate. This is called fish plate. Okay, this connecting element of two rails are called as fish plate. Okay, so when the train passes, the full speed train then passes over the joint, there is a chances of blow of this fish plate. Okay, loosening or blow of this fish plate. It also affects the ballast, fastening is nothing but connections. This is called fastening. This screws. Okay, we can say these are the fastening and fixtures of railway track. Okay, next, wear and tear of track component. See, when the train moves over a joint, there will be wear and tear of the railway lines. Okay, railway track. Impact at rail joints. Okay, reduces lifespan of rail sleepers and fastening. If the joint is weak, it will definitely affect the whole track. Okay, if the joint is weak, it will definitely affect the whole track. And noise is also created when if the joint is not strong or it is not properly continuous, then there is certain kind of a noise which generated when the train passes through a joint. Increases fuel consumption. See, when the different types of joints are connected, locomotive will require more tractive effort, so fuel consumption will be more. So it is very important to maintain less joints and to maintain proper joints. Okay, now requirements of rail joints. uh, how can you provide a proper joint or
which is considered to be the most important, perfect joint. Okay, so see here, holding rail ends for continuity, sufficient strength and stiffness, adequate expansion gap. See, holding rail ends for continuity. See, means two rails holding end to end should be continuous. For example, again, vertical and horizontal level should be same, both rail. Okay, sufficient strength and stiffness should be there. ठीक है ना, जैसे कि इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे कि होल्डिंग रेल्स एंड फॉर कंटिन्यूटी, दो रेल्स जो आप कनेक्ट कर रहे हो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेवल उनका बिल्कुल सेम होना चाहिए, स्ट्रेंथ और स्टिफनेस मेंटेन होना चाहिए जॉइंट पे। ठीक है ना, वो कैसे होगी जब आप प्रॉपर जॉइंट को कनेक्ट करोगे। एडिकेट एक्सपांशन गैप, एक छोटी सी एक्सपांशन गैप भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो गैप दिख रही है ये एक्सपांशन गैप बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन गैप बोलते हैं, ये भी जरूरी है जहाँ पे थर्मल स्ट्रेसेस आते हैं। ठीक है, उसके बाद इजी रिमूवल और रिप्लेसमेंट उसका हो जाना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इट शुड बी इजीली रिमूवेबल और रिप्लेसमेंट। ठीक है ना, इसका रिप्लेस भी आराम से हो जाना चाहिए और रिमूव भी हो जाना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, प्रोविजन फॉर वियर एट rail ends, it should not allow the rail ends to get battered in any case। जब फॉर एग्जाम्पल आपके जब ट्रेन यहाँ पे होती है, सो हियर फॉर एग्जाम्पल देखिए जब ट्रेन का व्हील यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ये एंड पे जब आएगा तो क्या होगा, वो बैटर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो एंड है ये बैटर्ड नहीं होना चाहिए, सिंपल मीनिंग है उसका। ठीक है, उसके बाद देखिए एडिक्वेट इलास्टिसिटी, जॉइंट में इलास्टिसिटी होना चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए, द जॉइंट शुड फुलफिल द अबाउ रिक्वायरमेंट विद द मिनिमम ऑफ इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। आपको ये सारी रिक्वायरमेंट जॉइंट की फिल तो होना ही चाहिए, पूरी तरीके से फुलफिल होना ही चाहिए, साथ ही वो इनिशियल और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होना चाहिए, यानी कि वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। ये कंडीशन तो हर एक कोई भी चीज़ की आप रिक्वायरमेंट पढ़ते हो, ठीक है ना, तो ये कंडीशन तो उसमें होती है। ठीक है, आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सी, ये जो हम पढ़ रहे हैं जॉइंट्स के बारे में, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, दैट इज नॉर्मल जॉइंट, विच इज व्हेन द टू रेल्स आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ फिश प्लेट। ओके, तभी ये टाइप के जॉइंट्स आप यूज करोगे। जॉइंट दो तरह के मेन, एक नॉर्मल जॉइंट है जो कि फिश प्लेट से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे, ये नॉर्मल जॉइंट है, इसको हमने ये फिश प्लेट से कनेक्ट किए। इसके अलावा एक और जॉइंट होता है जिसे वेल्डिंग के जरिए हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वेल्डेड जॉइंट भी आप देखेंगे। ठीक है, ये जो हम फिश प्लेट के जरिए जो जॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसमें देखिए अलग अलग तरह के जॉइंट्स हैं, जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं सपोर्टेड रेल जॉइंट्स। इसको सपोर्टेड रेल जॉइंट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे ये एक स्लीपर, आप साइड व्यू देख रहे हो रेल का, ठीक है ना, तो स्लीपर आपको इस तरफ जा रहा है स्लीपर, है ना, ये आप ट्रांसवर्स डायरेक्शन में और रेल जो है लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन में। तो आप देखोगे कि ये जो रेल्स है ये स्लीपर के ऊपर रेस्ट कर रहा है ना, सपोर्ट कर रहा है। दोनों रेल जो कि हमको ऐड करना है, इसको कनेक्ट करना है, इसको आप फिश प्लेट से कनेक्ट करेंगे, है ना, यहाँ पे आप फिश प्लेट से इसको हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से फिश प्लेट आ जाएगी, इसको कनेक्ट करेंगे फिश प्लेट के जरिए। ठीक है ना, तो ये जो फिश प्लेट के जरिए कनेक्ट करेंगे तो ये जो रेस्ट कर रहे हैं दोनों एंड, ठीक है, ये जो दोनों एंड रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके एंड कर रहे हैं एक स्लीपर के ऊपर। ठीक है ना, तो ये एंड टू एंड कनेक्टेड और इसको हम फिश प्लेट के जरिए कनेक्ट करेंगे। ये जो रेस्ट कर रही है दोनों रेल्स, ये रेस्ट कर रही है एक स्लीपर के ऊपर, इसलिए ये सपोर्टेड है स्लीपर के ऊपर, है ना, इसलिए इस जॉइंट को बोला जाता है सपोर्टेड जॉइंट। ठीक है ना, when the rails ends rest on a single sleeper, this is a single sleeper, both ends of these rails are resting on this particular single sleeper called as joint sleeper। इस स्लीपर को क्या बोला जाता है, जॉइंट स्लीपर। ठीक है ना, जब दो रेल्स के एंड एक सिंगल स्लीपर के ऊपर रेस्ट किए जाते हैं, सपोर्ट किए जाते हैं, तो उस स्लीपर को बोला जाता है जॉइंट स्लीपर और इस जॉइंट को बोला जाता है सपोर्टेड रेल जॉइंट। सपोर्टेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों रेल जो है सपोर्ट हो रही है किसके ऊपर, ये एक जॉइंट स्लीपर के ऊपर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सपोर्टेड जॉइंट। ओके, गॉट इट। See this next, suspended rail joint. Another one is suspended rail joint. As the name suggests, the rails are suspended on here. See here, it is resting on the sleeper, but
the part which will connect these both rail is suspended. Okay, this is not resting on any kind of a sleeper. So here यहाँ पे ये देखिए स्लीपर है, ये स्लीपर है, लेकिन जो एंड पॉइंट दोनों के जो रेल्स को हमको कनेक्ट करना है दैट इज सस्पेंडेड. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सस्पेंडेड रेल जॉइंट्स. ओके, दिस इज सपोर्टेड बिकॉज इट इज सपोर्टेड ऑन स्लीपर. That's why it is called a supported joint, but this is not supported on any kind of a sleeper. That's why it is called as suspended rail joints. Okay, so these are the two types of rail joints. See again, let's move. See, there are other types of suspended rail joints. When the rail ends are projected beyond sleeper, called shoulder sleeper, and the joint is termed as suspended rail joints. Okay. This is called as shoulder sleeper. Okay, this is called as shoulder sleepers. इसमें एक और तरीके का जॉइंट होता है, देखिए इसे ब्रिज जॉइंट भी हम बोलते हैं. यहाँ पे इंडियन रेलवेज में कम यूज होता है. देखिए ये सस्पेंडेड रेल्स है दो, ये ना एक तरह का शोल्डर स्लीपर, ये इसको शोल्डर स्लीपर बोलते हैं, और ये जो है ना एक तरह की ब्रिज प्लेट होती है, जो कि ये रेल्स स्लीपर, ये रेल्स और ये स्लीपर को कनेक्ट करें. देखिए ये जो कर्व प्लेट है ना, इसे बोला जाता है ब्रिज प्लेट. ये इंडिया में यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ज्यादा. देखिए यहाँ पे भी देखिए दोनों सस्पेंडेड है, जॉइंट सस्पेंडेड है, तो यहाँ पे देखिए ब्रिज मेटल प्लेट एक लगा है, ठीक है ना. ये जनरली इंडिया में यूज नहीं की जाती है, फॉरेन में ही ज्यादा यूज होती है. ये भी एक तरह का, इसको हम ब्रिज जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, सस्पेंडेड जॉइंट का ही पार्ट है, ठीक है. ये कॉर्रुगेटेड एक प्लेट होती है, ब्रिज प्लेट स्टील की, ठीक है, इस तरीके से रेल के नीचे सपोर्ट करते हैं. ये तब किया जाता है जब ये सस्पेंडेड पार्ट बहुत ज्यादा हो. इंडिया में जो हम यूज करते हैं ये सस्पेंडेड पार्ट इतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है. यहाँ पे जब सस्पेंडेड पार्ट बहुत ज्यादा हो, और दूसरा रीजन जो फॉरेन रेलवेज में यूज होता है हाई स्पीड ट्रेन की वजह से. ट्रेन बहुत तेजी से, जो स्पीड है ट्रेन की वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, कंपेरेटिवली इंडिया के हम कंपेयर करेंगे तो, ठीक है. इसके बाद देखेंगे आगे. तो ये ब्रिज जॉइंट मैंने आपको बताया, कनेक्टेड बाय फ्लैट कॉर्रुगेटेड प्लेट. देखिए इस तरीके से ये जो प्लेट से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है ब्रिज जॉइंट. इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए ब्रिज जॉइंट में देखिए लाइन लिखिए, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज नॉट यूज्ड इन इंडियन रेलवेज, ठीक है. इसके बाद देखेंगे हम स्टैगर्ड और ब्रोकन जॉइंट. इसको ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सिंपल बताता हूँ आपको स्टैगर्ड जॉइंट क्या होता है. देखिए ये होती है स्टैगर्ड जॉइंट की एक इमेज आप देख रहे हो. जब ये जॉइंट तब प्रोवाइड करते हैं जब ट्रेन जो है ना कर्व पे होती है ना, तो ऑटोमेटिकली जो जॉइंट है वो स्टैगर्ड हो जाती है. स्टैगर्ड का मतलब क्या है, ये जो जॉइंट है इसके जस्ट अपोजिट में जॉइंट नहीं आ रहा है, उसके थोड़ा दूरी पे आ रहा है. देखिए फिर इसके जस्ट अपोजिट में आ रहा है कि ये, जैसे कि इसका जस्ट अपोजिट ही हो गया, ये पार्ट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा दूरी पे आ रहा है. फिर इसका देखिए अपोजिट में आ रहा है कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है ना. तो ये स्टैगर्ड है, पूरे जो जॉइंट्स है ना स्टैगर्ड है. ये कब होगा, जब ट्रेन, जब ये जो ट्रैक है वो कर्व के ऊपर से मूव करेगा, तब ये इस तरीके से स्टैगर्ड जॉइंट आता है, ठीक है. That's why it is called as staggered joint. This type of, देखिए the joints on a railway track are not directly opposite to the joints of rail track, ठीक है ना, एक दूसरे से अपोजिट नहीं है. These joints are generally provided on curves where the length of outer curve track is greater than the length of inner curve track, ठीक है. जब length of outer curve is more than length of inner curve, of course वो curve नहीं होता है. After that square joint और even जॉइंट, ठीक है ना. इस तरीके ये जो जॉइंट है स्ट्रेट ट्रैक में होते हैं. इसमें क्या देखिए जॉइंट्स एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं ना, बिल्कुल अपोजिट आ रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर जॉइंट, ठीक है ना. ये जनरली स्ट्रेट ट्रैक में होता है, ये होता है स्क्वायर जॉइंट. उसके बाद इंसुलेटेड जॉइंट. देखिए इंसुलेटेड जॉइंट में क्या होता है, ये जो फिश प्लेट के अंदर एक इंसुलेटेड जो है ना एक मीडियम हम फिक्स करती है, इंसुलेटेड प्लेट है, ठीक है ना. ये कहाँ, ये जनरली फॉरेन में यूज होता है. ये इसलिए यूज करते हैं हम ताकि ट्रैक पे अगर करंट है तो उसकी कंटिन्यूटी को हम ब्रेक कर सकें, ठीक है ना. When insulating medium is inserted in a rail joint to stop the flow of current beyond the track circuit part, it is called as insulated joint, ठीक है ना. जब हमको करंट पास नहीं करना है, जो करंट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल करंट के ब्रेक को तोड़ना है, ठीक है ना, ये रेलवे ट्रैक में जब आ जाता है, ठीक है, तो ये जनरली फॉरेन में ही यूज करते हैं, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज इंसुलेटेड जॉइंट. नेक्स्ट इज एक्सपांशन जॉइंट. इसको ध्यान से देखिए, एक्सपांशन जॉइंट. In bridges, provision for expansion and contraction is kept for girders and rail both. इसको मैं सिंपल बताता हूँ. देखिए यहाँ पे देखिए
ये जो जॉइंट दिख रहा है आपको ये होता है एक्सपांशन जॉइंट। ठीक है, ये देखिए ये एक रेल है, दो रेल है, दूसरी रेल है, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हुई है। ठीक है, जो आपको दिख रहा है दैट इज एक्सपांशन जॉइंट। ये एक्सपांशन जॉइंट बोलते हैं इसको। इसको हम इसलिए किया, इसको प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे थर्मल स्ट्रेसेस ज़्यादा हो। ठीक है ना, ब्रिजेस में जनरली ये हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर एक्सपांशन होगा तो इसे टैकल कर लेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक ये रेल यहाँ पे आई है, इस तरीके से इसको कनेक्ट किया गया है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज चेक रेल्स। ओके, व्हेन द ट्रेन मूव्स द व्हील शुड नॉट dislocate, that's why we provide check rail here. This is called as check rail. Okay, this is called as check rail. So this is called as expansion joint. Okay, during summer and winter when the season changes, it will contract or it will expand. Okay, that's why it is called as expansion and contraction joint also. So this is called as expansion joint. Okay, this is a kind of a joint. Okay, and this is called as check rail. Okay, ठीक है ना, जब ट्रेन यहाँ पे मूव करेगी तो जो व्हील है वो डिसलोकेट ना होता कि व्हील को ये सपोर्ट करके रखे। समझ लीजिए इसका मीनिंग। देखिए जब यहाँ पे दो ट्रैक इस तरीके से कनेक्ट हो ना, तो हो सकता है व्हील अपनी लोकेशन से थोड़ा सा मूव हो सकता है, तो चेक रेल उसको वापस इधर ढकेलेगा व्हील को। ठीक है, ये थोड़ा सा और क्लोज होता है, आपको देख नहीं रहा इमेज में। ठीक है ना, ये होता है थोड़ा सा और क्लोज। तो जैसे ही ये इसके ऊपर जाएगा तो हो सकता है थोड़ा सा व्हील इधर डिसलोकेट होने की कोशिश करे, तो चेक रेल उसको वापस से इधर मूव करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज चेक रेल। और ये हर एक्सपांशन जॉइंट में इस तरीके से चेक रेल हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए जो जॉइंट्स का टॉपिक है ना वो आपके सिलेबस में है नहीं और पूछता नहीं है, बट जनरली आपको उसको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट एंड आपके सिलेबस में भी है ऑफकोर्स, डिफेक्ट्स इन रेल्स। जो रेल्स है, ठीक है ना, जो रेलवे ट्रैक के ऊपर जो रेल्स है ऑफकोर्स, उनमें कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं हम उसे देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला इफेक्ट कॉर्यूगेटेड और रोरिंग ऑफ रेल्स। ठीक है ना, कॉर्यूगेटेड और रोरिंग ऑफ रेल। कॉर्यूगेशन क्या होता है, देखिए ये होती है कॉर्यूगेटेड रेल। यहाँ पे देखिए, ये देखिए किस तरीके से वेव बन गई है रेल ट्रैक के ऊपर। ठीक है ना, देखिए इन सर्टन प्लेसेस द हेड्स ऑफ द रेल्स, ये हेड्स है ना रेल का हेड टॉप पार्ट, आर फाउंड नॉट स्ट्रेट बट कॉर्यूगेटेड विद अ वेवी सरफेस। यहाँ पे देखिए वेवी सरफेस बन गया है ना। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज कॉर्यूगेशन एंड द रेल्स आर कॉल्ड एज कॉर्यूगेटेड रेल। ठीक है ना, जब ट्रेन मूव करती है बहुत स्पीड से, ठीक है ना, तब ये कॉर्यूगेशन की तरह इस तरीके से बन जाता है, वेव बन जाती है इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए ट्रैक में बहुत छोटी छोटी सी वेव बन गई है, दैट दिस इज कॉल्ड एज कॉर्यूगेशन। ठीक है, ये एक तरीके का डिफेक्ट है रेल्स में, जब ट्रेन बहुत स्पीड से मूव करेगी, जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हॉग या स्क्रबिंग रेल्स। हॉग मतलब क्या होगा, देखिए ये होती है हॉग, इस तरीके से बहुत लंबी लंबी जो वेव्स बन जा रही है। ठीक है ना, इस तरीके से हॉग हो जा रही है रेल। ठीक है, तो इसे बोला जाता है हॉग रेल्स। द रेल्स विच आर बेंट vertically at the ends are known as hogged rails and they are formed due to wear of rails on the ends। ठीक है ना, जो wear की वजह से होता है, wear की वजह से होता है। ठीक है ना, जो ट्रेन का टॉप पार्ट है वो रिमूव होने की वजह से होता है, इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, और नीचे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना हो फाउंडेशन में तो ऑफकोर्स ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, आफ्टर दैट किंग्स ऑफ रेल्स, रेल जो है ना ट्विस्ट हो जाती है। ठीक है, ट्विस्ट हो जाती है मिडिल पार्ट से। उसके बाद बकलिंग ऑफ रेल, बकलिंग ऑफ रेल देखिए यहाँ पे इस तरीके से, देखिए किंग्स भी इसी तरीके का होता है, किंग्स में टॉप सरफेस में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, ये बकलिंग ऑफ रेल, अपनी पोजीशन से रेल गेज उसका देखिए किस तरीके से चेंज हो गया। ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा नहीं होता है बट ये जनरली होता है। ठीक है ना, इमेज में बताने के लिए थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, वो सीवियर केस है बकलिंग का। ठीक है, देखिए किस तरीके से बकल हो गई रेल। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डिफेक्ट इन रेलवे ट्रैक। See, buckling means the track has gone out of its original position or alignment due to prevention of expansion of rails in hot weather on account of temperature variation। इसमें देखिए ये एक्सपांशन की वजह से ही हो रहा है, टेम्परेचर वेरी होने की वजह से जो ट्रेन का जो ये पार्ट है देखिए एक्सपांड हुआ। एक्सपांड जब ये ट्रैक स्ट्रेट था और जब एक्सपांड हुआ या कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो देखिए अपनी पोजीशन किस तरीके से चेंज हो गई इसकी, क्योंकि लेंथ बढ़ गई वहाँ पे, इस पार्ट में लेंथ बढ़ गई इसलिए ये बकल हो गया, है ना, इस तरीके से बकल हो गया। वो देखिए किस तरीके से ये बकल हो गया, दैट इज कॉल्ड एज बकलिंग ऑफ रेल्स। तो ये भी एक तरीके का डिफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए रेल फेलियर्स, बीच में से क्रैक आ जाता है, वो जनरली रेल फेलियर्स है। वियर इन रेल्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जो टॉप पार्ट है रेल का वो उखड़ता जाता है ना, रिमूव होते जाता है,
उसी को कहते हैं वियर इन रेल्स। वियर इन रेल्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये आप डिफेक्ट्स याद रखिए, ठीक है ना। ये जो 6 डिफेक्ट्स है आप इसे याद रखिए, कॉर्रुगेशन, हॉग, किंग्स, बकलिंग, रेल फेलियर और वियर। जो किंग्स है ऑलमोस्ट सिमिलर है बकलिंग के, ठीक है ना, ट्विस्ट हो जाना रेल का, ठीक है, मुड़ जाना एकदम से रेल। ये आप कह सकते हो कि रेल जो है वो बिल्कुल एक तरीके से सीधी लाइन, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रैक का बिल्कुल सीधा था, तो इस तरीके से जब ट्रैक कुछ इस तरीके से हो जाए, है ना, ये आप बोल सकते हो ये इस तरीके से ट्रैक था आपका, है ना, लेकिन जब वो इस तरीके से ट्विस्ट हो सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से मुड़ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्विस्ट ऑफ किंग्स, ठीक है। उसके बाद आप ये इमेजेस देख लीजिए, समझ आ जाएगा आपको आसानी से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वियर इन रेल्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, वियर इन रेल्स, ठीक है। देखिए वियर मतलब क्या होगा, ये बहुत ही कॉमन डिफेक्ट है, ठीक है ना, रेल्स में प्रोमिनेंट डिफेक्ट्स इन रेल्स, ठीक है ना, विच इज वन ऑफ द prominent defects in of rails, ठीक है ना। दिस wear is one of the most prominent defects in rails। इसमें क्या होगा, देखिए जैसे कि ये रेल्स है, ठीक है ना, जो व्हील मूव होता गया, जो व्हील्स मूव हो रहे हैं, तो ये जो टॉप सरफेस है रेल का, ये उखड़ता जाता है, रिमूव होता जाता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, वियर। हो सकता है कुछ दिन बाद रेल की जो हाइट है थोड़ी सी कम हो जाती है, ये ऊपर का पूरा जो पार्ट है वो उखड़ता गया, रिमूव होता गया, ठीक है ना। देखिए इसकी डेफिनेशन, the surface of the rail either on the top of the rail head or side of rail head or at the end of rail head gets removed। हो सकता है साइड में भी होता है वियर, बॉटम में भी होता है, ठीक है ना। टॉप में सबसे ज्यादा वियर होता है, ऑफ कोर्स वो व्हील घिसते जाता है ना, व्हील जब इसके ऊपर मूव होगा तो फ्रिक्शन की वजह से रेल घिसता जाएगा और छोटा हो जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड एज वियर इन रेल्स। इसके जो मेजर रीजंस है वो हम देखेंगे। इसके जो मेजर रीजंस है देखिए, एबनॉर्मली हैवी लोड्स, जब आपने ट्रैक को का फाउंडेशन अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड नहीं किया और बहुत हैवी लोड्स आ रहे हैं, ट्रेन बहुत स्पीड से मूव कर रही है और हैवी लोड है, क्या होगा, वियर ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाई स्पीड और फास्ट ट्रेन, ठीक है ना, और जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा है इलास्टिक लिमिट के, ठीक है ना, तो क्या होगा, जब जो आपके स्लीपर्स है वो स्पेसिंग ऑफ स्लीपर प्रॉपर नहीं है, तो ऑटोमेटिक ट्रैक जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, गेज इम्प्रॉपर है, ये सारी चीज़ों की वजह से स्ट्रेस पड़ता है, तो इलास्टिक लिमिट जब वो क्रॉस कर जाता है तो ये चीज़ें होती है। जो गैप है जॉइंट में, अगर ये गैप बहुत ज़्यादा हो या बहुत, ठीक है ना, तो तब भी ये आपका जो वियर है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जब ये देखिए जब गैप बहुत ज़्यादा हो तो ये जो व्हील यहाँ पे आएगा वो और तेजी से रेल को इधर पुश करेगा, ठीक है ना, पुश करेगा और एकदम से यहाँ पे घिसाव पैदा हो सकता है, फ्रिक्शन। दैट्स व्हाई गैप एट जॉइंट्स शुड बी मेंटेन प्रॉपर्ली, शुड नॉट बी टू लेस और टू लार्ज। उसके बाद स्लिपिंग, स्किडिंग, स्ट्राइकिंग ऑफ व्हील फ्लेंजेस ऑन कर्व, जब ट्रेन कर्व में मुड़ेगी तो क्या होगा, एक दूसरे से कर्व, वो जो व्हील्स है, जो फ्लेंज हमने पढ़े थे ना, कोनिंग ऑफ व्हील, उसमें क्या होगा, टकराता है ट्रैक से, स्किड होता है, स्ट्राइक करता है, स्लिप होता है, ये सारी चीज़ें जब जो एक्शन होता है व्हील का रेल के ऊपर, उसकी वजह से भी वियर बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आगे रेल्स का जो वियर, उसकी क्लासिफिकेशन देखिए, लोकेशन के हिसाब से और पोजीशन के हिसाब से अलग अलग है। जैसे कि बेस्ड ऑन लोकेशन, ऑन शार्प कर्व पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है वियर, है ना। स्टीप ग्रेडियंट में एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, जब एकदम चढ़ाई करना हो लोकोमोटिव को, क्या होगा, ज़्यादा एफर्ट लगाएगा और ज़्यादा उस पर वियर होगा, जितना लोकोमोटिव एफर्ट लगाएगा उतना वियर होगा। स्टेशन के पास ट्रेन एकदम से एक्सेलरेट करती है और ब्रेक लगती है, स्टेशन के अप्रोच, है ना, जैसे स्टेशन पास आने लगता है तो ट्रेन ब्रेक होता है, ब्रेक लगाते हैं, है ना, इंजन का ब्रेक लगाते हैं तो क्या होगा, ब्रेकिंग इफेक्ट आएगा, या स्टेशन से ही ट्रेन जो एक्सेलरेट करना चालू करती है तो इसलिए जो अप्रोचेज है स्टेशन के, वहाँ पे वियर ज़्यादा होता है। आफ्टर दैट इन टनल्स और कोस्टल एरियाज में ह्यूमिडिटी और वेदर इफेक्ट की वजह से भी जो वियर है ज़्यादा होता है। वेदर इफेक्ट जब सीजनल जो इफेक्ट है, जब बहुत ज़्यादा धूप हो तब भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और देखिए वीक फाउंडेशन में जब आपको बताया, जब फाउंडेशन बहुत वीक हो और लोड बहुत ज़्यादा हैवी हो तो वियर ज़्यादा होता है, जब वो ट्रैक्स उसको वियर नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद पोजीशन के हिसाब से देखेंगे कि वियर ज़्यादा कहाँ पे होता है। ऑफकोर्स जो वियर ज़्यादा है वो रेल के टॉप सरफेस पे होता है, ठीक है ना, टॉप ऑफ रेल, एंड ऑफ रेल, साइड्स ऑफ रेल, ये 3 जगह पे वियर होता है। टॉप ऑफ रेल में फ्लो ऑफ मेटल बहुत स्पीड से जो आपके
व्हील्स है ट्रेन की और जो एकदम इमीडिएट कांटेक्ट में व्हील्स और रेल का टॉप, ठीक है ना। तो फ्लो ऑफ मेटल बहुत स्पीड से होगा, उसकी वजह से होता है। इम्पैक्ट ऑफ हैवी एक्शन लोड्स, ट्रेन का जो लोड डायरेक्टली उस पर आ रहा है। करोजिव इफेक्ट भी ज़्यादा है, स्किडिंग डायरेक्टली हो रहा है टॉप पे। सुपर एलिवेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी हमने पढ़े हैं ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कर्व में होता है, सुपर एलिवेशन प्रॉपर नहीं है, तब भी क्या होगा, वियर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इफेक्ट ज़्यादा आएगा रेल के ऊपर। स्लीपिंग ऑफ व्हील्स ऑन कर्व, कर्व के ऊपर अब हमने देखे कि फ्लेंजेस टकराते हैं, स्लिप होते हैं, स्किड होते हैं कर्व के ऊपर, वहाँ पे भी वियर ज़्यादा होता है। टॉप ऑफ रेल में हमेशा वियर ज़्यादा होगा, ठीक है। साइड ऑफ रेल में क्या होगा, जैसे जो रेल्स की हम बात करें ना, वेब की बात करें, साइड में बोले तो वेब, कल ही हमने पढ़े थे। टॉप, ठीक है ना, हेड, उसको टॉप को क्या बोला जाता है, हेड। साइड्स में क्या बोला जाता है उसको, वेब। और जो उसका बिल्कुल साइड है, टॉप का जो साइड है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, व्हील एकदम टकराएगा, है ना, जब कर्व पे स्पेशली। देखिए यहाँ पे लिखा स्किडिंग ऑफ व्हील्स ऑन कर्व, तब क्या आएगा, साइड ऑफ रेल हेड में आएगा, है ना, साइड ऑफ रेल हेड। कल आपने देखे थे ना कुछ इस तरीके से, हमने कल देखे थे कि कुछ इस तरीके से। इस तरीके से जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जनरली अभी हम जो बात करें ना वो टॉप के ऊपर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो पहला आपने देखी ये जो टॉप ऑफ रेल हेड, टॉप ऑफ रेल हेड ये हो गया, साइड ऑफ रेल हेड ये हो गया, साइड ऑफ रेल हेड ये हो गया, एंड ऑफ रेल हेड मतलब ये हो गया, ठीक है। तो ये पहला सबसे ज़्यादा तो यही कॉन्टेक्ट में रहेगा। फिर उसके बाद देखिए ये व्हील इसके ऊपर रहता है, और व्हील जो है वो यहाँ पे कम इफेक्ट कहाँ डालेगा, सबसे ज़्यादा इधर डालेगा इफेक्ट टॉप में, उसके बाद साइड में डालेगा, ये यहाँ पर डालेगा वो इफेक्ट, ठीक है ना, यहाँ पे डालेगा, और ये नीचे इतना इफेक्ट नहीं डालेगा वो। तो देखिए यहाँ पे इफेक्ट कब आएगा, जब रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, यानी कि जो व्हील बेस जो है इससे टकराता है, जब टकराता कहाँ पे, जब ट्रेन कर्व में मूव करती है तो व्हील इसके पास टकराता है, ठीक है ना, इसके ऊपर। तो ये जो थ्रस्ट जो लगता है, इनर थ्रस्ट, उसकी वजह से ये यहाँ पे वियर होता है। उसके बाद एंड ऑफ रेल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इफेक्ट डालेगा। जो फिश प्लेट है, जब आप कनेक्ट करते हो रेल को, तो फिश प्लेट ये यहाँ पे होता है ना, इसके और इसके कांटेक्ट में होता है फिश प्लेट, है ना, ये दोनों के कांटेक्ट में होता है फिश प्लेट। यहाँ पे वियर आएगा, इधर भी उसी की वजह से वियर आएगा, हैवी लोड्स की वजह से। जॉइंट्स की जो देखिए विड्थ है वो ज़्यादा होना, डिफरेंस इन रेल हाइट्स, बैड कंडीशन ऑफ व्हीकल स्प्रिंग, पुअर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे इफेक्ट आएगा। बट मेन इफेक्ट आएगा फिश प्लेट और हैवी लोड्स की वजह से, ठीक है। तो ये जो पोजिशंस थी उसको हमने देखे अभी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम आगे, जो रेल्स का जो वियर है उसकी परमिसिबल लिमिट्स क्या है वो देख लेते हैं। देखिए वेट के हिसाब से अगर आप देखोगे, वेट ऑफ रेल और वेट ऑफ एक्सल के हिसाब से, तो जो 5% है, ठीक है ना, लिमिटेड टू 5% ऑफ रेल वेट, ठीक है, लिमिटेड टू 5% ऑफ रेल वेट। वियर ऑफ 25% ऑफ द सेक्शन ऑफ हेड इज अलाउेबल, जो 25% अगर रिडक्शन ऑफ वियर हो रहा है, 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हेड पे, ठीक है ना, उतना अलाउ करते हैं। अगर 25% से ज़्यादा हो गया, 30 हो गया, तो आपको रेल को रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ रेल वहाँ पे नेसेसिटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे, उसको प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं। वियर जो है, जैसे कि हमने देखा, इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रोमिनेंट डिफेक्ट इन रेलवे ट्रैक। इसे आप रिमूव कैसे कर सकते हो या इसको कम कैसे कर सकते हो। बेटर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, जो डेली इंस्पेक्शन अगर ट्रैक का होगा तो ज़्यादा अच्छा है ना। नंबर ऑफ जॉइंट्स को कम से कम करना है, ठीक है ना, जितने जॉइंट्स बढ़ेंगे वहाँ पे उतना इफेक्ट ज़्यादा आता है, ठीक है ना, जॉइंट जितने ज़्यादा होंगे वहाँ पे वियर भी ज़्यादा आता है, जॉइंट के पास में वियर ज़्यादा आता है। यूज ऑफ हैवियर और हायर रेल सेक्शन, आप अच्छा हाई स्टैंडर्ड अगर रेल सेक्शन यूज करोगे डेंसिटी वाला तो ज़्यादा बेटर है ना, लेकिन वहाँ पे आपको इकोनॉमी को भी देखना है, ठीक है। यूज ऑफ बियरिंग प्लेट्स, एडजिंग ऑफ स्लीपर हमने पढ़े थे, देखना वहाँ पे आप कोनिंग ऑफ व्हील में। लिब्रिकेटिंग गेज फेस, अब उसे प्रॉपर ऑयल से लिब्रिकेट करना पड़ता है गेज को। यूजिंग चेक रेल्स ऑन शार्प कर्व, चेक रेल्स मैंने आपको बताया है ना, शार्प कर्व में अगर आप चेक रेल प्रोवाइड करोगे तो व्हील
ज़्यादा अपनी पोजीशन से मूव नहीं होगा, चेक रेल उसको वापस इधर धकेलेगा, ठीक है ना। चेक रेल अभी हम लोग देखें, ट्रैक रिन्यूअल, ट्रैक का रिप्लेसमेंट भी ज़रूरी है कुछ दिनों बाद, है ना। थोड़ा जब बहुत ज़्यादा ट्रैक खराब हो जाए तो इसे रिप्लेस करना भी ज़रूरी है। ये रिप्लेसमेंट एक डेली इंस्पेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना। देखिए जॉइंट से यहाँ पे फिश प्लेट दिख रही थी, देखिए ये फिश प्लेट से कनेक्टेड है। यहाँ पे वियर का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, ठीक है ना। उसके बाद और भी इसमें मेथड्स है, स्पेशल स्टील अलॉय यूज करना रेल्स में, ठीक है ना। मेंटेनेंस ऑफ रेल जॉइंट, वेल्डिंग या डी हॉगिंग ऑफ बैटर्ड एंड, हॉगिंग आपने देखे ना, जैसे आप हॉगिंग को जो जनरली हॉगिंग जॉइंट्स में ज़्यादा होती है उसे डी हॉग करना। वेल्डिंग जो है ना बेटर है, अभी हम वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे आगे। मेंटेनेंस ऑफ करेक्ट गेज, गेज को प्रॉपर मेंटेन करना। एप्लीकेशन ऑफ हैवी मिनरल ऑयल इन केस ऑफ करोजन ऑफ रेल मेटल अंडर एडवर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन, रिड्यूस द वियर ऑफ रेल्स। अगर आप मिनरल ऑयल, अच्छे जो ऑयल्स है उसे लुब्रिकेट करोगे तो करोजन जो है रेल मेटल का वो कम हो सकता है, ठीक है। करोजन कम होगा तो वियर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझा है, ये इम्पोर्टेंट था वियर के बारे में, ठीक है ना। डिफेक्ट्स एंड वियर्स ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था जॉइंट दो तरह के होते हैं, है ना। जॉइंट दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल जॉइंट है जो कि फिश प्लेट से कनेक्ट करते हैं, है ना। और एक और जॉइंट जो कि अब आजकल ज़्यादा यूज होता है और जो कि काफ़ी बेहतर माना जाता है कंपैरेटिवली, दैट इज कॉल्ड एज वेल्डेड जॉइंट। अभी हमने देखिए दो रेल्स को कनेक्ट हम कर रहे थे, फिश प्लेट लगा रहे थे, बोल्ट्स लगा रहे थे, फास्टनिंग एंड फिक्सचर्स। लेकिन जब आप वेल्डेड जॉइंट यूज करोगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए एग्जांपल वेल्डेड जॉइंट किस तरीके से दो रेल को वेल्ड किया गया है, ठीक है ना, वेल्ड किया गया है। वेल्डिंग आपको पता ही है क्या होता है, बहुत ज़्यादा आप इसमें हीट प्रोवाइड करोगे, ठीक है ना, यहाँ से, और फोर्स के साथ ही दो रेल को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो उससे ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और वेल्डिंग इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्मल जॉइंट। नॉर्मल जॉइंट मीन्स दैट विच इज कनेक्टेड थ्रू फिश प्लेट। These are the best joint as they fulfill nearly all requirement of an ideal or perfect joint, ठीक है ना। Welding of rails provides very strong rail joint with many advantages. Various methods are used of welding of joints are electric arc welding, gas pressure welding, flash butt welding, chemical welding। ये चार ऐसे कोई मेथड्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, जस्ट वेल्डिंग के बारे में आप याद रखें, ठीक है ना। मेथड वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। here it is considered to be the strongest joint, okay। strongest joint इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई गैप हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई बोल्ट वगैरह नहीं आएंगे, एक तरह का कंटिन्यूस हो गया है ये पूरा सेक्शन, है ना। ये जो सेक्शन था अब ये पूरा एक ही सेक्शन बन गया है, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, द नंबर ऑफ जॉइंट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग ऑफ रेल्स। जो जॉइंट्स है, देखिए अगर सपोज 100 किलोमीटर का ट्रैक है तो आप 100 किलोमीटर को वेल्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना, पूरा को। किसी को आप वेल्ड करोगे, किसी को फिश प्लेट से कनेक्ट करोगे। जब आप कुछ पार्ट, कुछ जॉइंट्स को वेल्ड करोगे, कुछ को फिश प्लेट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। वेल्डिंग, देखिए वेल्डिंग भी सस्ता नहीं है, ठीक है ना, इकोनॉमिकल इतना नहीं है, इसलिए पूरों को वेल्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो किसी को हम फिश प्लेट से कनेक्ट करते हैं, किसी को वेल्ड करते हैं। सो द नंबर ऑफ जॉइंट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग ऑफ रेल्स, है ना। जब आप वेल्ड करोगे तो जो प्रोसेस है वो, जो आपके जॉइंट्स है वो कम। उसके बाद देखिए इट इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड परफेक्ट जॉइंट। पर्पस क्या है इसका, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ रेल। ऑफ कोर्स लेंथ ऑफ रेल, एक दूसरे से हम जब कनेक्ट करते आएंगे रेल्स को तो ऑटोमेटिक उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। जो वॉर्न आउट और डैमेज रेल है, जो कुछ पार्ट उखड़ गया है रेल का, तो उसको भी हम वापस से वेल्ड कर सकते हैं। टू बिल्ड अप worn out at points and crossing, ठीक है ना। जब शार्प कर्व पे ट्रेन मूव कर रही है, जब दो ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही है, तो वहां पर भी जो worn out या जो उखड़ चुकी है पार्ट, उसको हम वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस के काफ़ी है, देखिए यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो 20 to 40% कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्लेट्स कम हो जाती है, उसमें फास्टनिंग एंड फिक्सचर जो स्क्रूज लगते हैं वो सारी चीज़ें कम हो जाती है ना, इसलिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 20 to 40% कम हो जाता है।
ऑफकोर्स वो होगा कि जब नॉर्मल जॉइंट है जिसमें फिश प्लेट लगा रहे हो, बोल्ट लगा रहे हो, अंदर जो आप कीज लगा रहे हो, है ना, कल कीज भी बात देखे थे हमने, जब ये सारी चीज़ें कम होगी तो ऑटोमेटिक जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। लेकिन इसका थोड़ा सा आप बोल सकते हैं इनिशियल कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सेविंग इन फ्यूल ड्यू टू रिडक्शन इन ट्रैक्टिव एफर्ट, जब जॉइंट पे जब थोड़ा सा गैप रहता है ना, तो क्या होता है वहाँ पे लोकोमोटिव को थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, इसलिए जो फ्यूल है वो भी कम हो जाएगा जब वो जॉइंट्स नॉर्मल जॉइंट्स कम हो जाएंगे। रिडक्शन इन क्रीप, क्रीप हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट लेक्चर में डिटेल में। क्रीप आप तब देखना, क्रीप जनरली क्या होता है जब लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन में जो ट्रैक है ना उसकी लेंथ बढ़ जाती है, उसको हम क्रीप बोलते हैं, तो हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इंक्रीज इन स्टेबिलिटी एंड स्टिफनेस, जो स्टेबिलिटी और स्टिफनेस ज़्यादा प्रोवाइड करता है क्योंकि जॉइंट्स जो है वो कम हो जाते हैं, जो नॉर्मल जॉइंट्स है वो कम हो जाते हैं ना, तो जो वीक पार्ट क्या थे, जो नॉर्मल जॉइंट्स थे, लेकिन जो आपका वेल्डेड जॉइंट्स है वो इतना वीक नहीं है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जॉइंट, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट कंसिडर किया जाता है। ये जो पॉइंट्स है वो ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं तो स्टेबिलिटी और स्टिफनेस बढ़ जाती है। रेड्यूस इंटेंसिटी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, जब जॉइंट के ऊपर से ट्रेन मूव करती है तो वाइब्रेट होता है, हलते हैं एक दूसरे की पोजिशन से, वाइब्रेट होते हैं, तो जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी जब वो वेल्डेड रहेगा। वेल्डेड एक तरीके से कंटिन्यूस बोल सकते हो जॉइंट है। इंक्रीज द लाइफ ऑफ रेल, ऑफकोर्स रेल की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, वियर कम हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ ट्रैक कंस्ट्रक्शन बाय वेल्डिंग ऑफ रेल डिक्रीजेस ड्यू टू लेस नंबर ऑफ जॉइंट्स। वेल्डिंग आधे जॉइंट्स वेल्ड करेंगे, आधे जॉइंट नॉर्मल हम प्रोवाइड करेंगे तो एकदम परफेक्ट इकोनॉमिकल ट्रैक बना सकते हैं। रिडक्शन इन थेफ्ट एंड डैमेज, इसका क्या मीनिंग है कि जो सबसे बड़ा डैमेज देख लीजिए, जब जो स्क्रूज है वो डैमेज हो सकते हैं, फिश प्लेट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, ये सारी चीज़ें हो सकती है, जो फास्टनिंग एंड फिक्सचर्स है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, डैमेज हो सकते हैं। एंड थेफ्ट, आपको तो पता है इंडिया में छोटी छोटी चीज़ें भी चोरी हो जाती है, तो रेलवे ट्रैक के लोग स्क्रूज निकाल के ले जाते हैं, फिश प्लेट निकाल के ले जाते हैं, तो इसलिए रिडक्शन इन थेफ्ट एंड डैमेज, ठीक है। मेथड ऑफ वेल्डिंग देखिए आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं इतना डिटेल में, है ना। मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, गैस प्रेशर, फ्लैश बर्ड, केमिकल और थर्माइट। थर्माइट वेल्डिंग इंडिया में यूज द फ्लैश बर्ड और थर्माइट, ठीक है ना। इसको आप देख लेना, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं पूछता है कभी, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वगैरह, ठीक है। आपको जस्ट इमेजेस में दिखा देता हूँ, ये देखिए ये सब वेल्डिंग प्रोसेस है, जनरल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए वेल्डिंग किस तरीके से होगी, गैस प्रेशर वेल्डिंग, देखिए फ्लैश बर्ड वेल्डिंग मशीन, इसको दो रेल्स को बाइट कर रही है, वेल्ड कर रही है। ये थर्माइट वेल्डिंग है, इंडिया में ज़्यादा यूज होता है थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग जो है वो इंडिया में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से दो पार्ट को वेल्ड किया जा रहा है, ठीक है। देखिए वेल्डिंग प्रोसेस हो रही है, देखिए वेल्ड होने के बाद किस तरीके से दिखता है, इसको पूरा फिनिशिंग की जाती है, पूरा रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए, ये एक नॉर्मल जॉइंट है, ये देखिए ये फिश प्लेट है, स्क्रूज लगे हैं, बोल्ट्स लगे हैं, ठीक है ना, और ये एक वेल्डेड जॉइंट है। ये देखिए ये नॉर्मल जॉइंट है, इसमें फिश प्लेट लगी है, दो रेल्स को कनेक्ट किया है, और ये एक वेल्डेड जॉइंट है। अब एक चीज़ याद रखिए, जो वेल्डेड जॉइंट्स है ना, ये स्टेशंस के बाद आप देखोगे तो ज़्यादा आपको दिखेंगे वेल्डेड जॉइंट्स। वेल्डेड जॉइंट्स जो है ना, वो आप वेल्डेड जॉइंट्स जो है जनरली ये स्टेशंस पे ज़्यादा दिखेंगे आपको, रेलवे स्टेशन पे। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो आउटसाइड में है रेलवे स्टेशन के, वहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं इसको। स्टेशंस पे जनरली वेल्डेड जॉइंट्स है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों कितने डिफरेंस, देखिए दोनों का कितना ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्रूज लग रहे हैं, फिश प्लेट लग रही है, लेकिन वेल्डिंग जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, इनिशियली कॉस्टली है, इसलिए हम पूरे ट्रैक में वेल्डिंग नहीं कर सकते, कुछ वेल्डिंग की जाती है, कुछ में हम नॉर्मल फिश प्लेट के जरिए कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो प्लेट है, फिश प्लेट है, स्क्रूज है, बोल्ट्स है, ठीक है ना। फास्टनिंग एंड फिक्सचर्स का भी टॉपिक हम पढ़ने वाले आगे, तो हम इन चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये वेल्डिंग और ये दोनों जॉइंट्स है, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लिप ऑफ रेल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये जितना हमने पढ़े वो क्लियर हुआ है, ठीक है।
प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क।